calculating arithmetic mean, we were giving equal weightage to all the elements in the distribution. So be it marks of the students, raw data which is given in the raw data form, or frequency distribution or group data, the each and every class or each and every value of x was assigned same weight, but that may not be the case all the time. Sometimes we assign different weightage to different variables. So then you will have to calculate the you cannot use simple arithmetic mean. You'll have to use weighted average. So let's try to understand the idea of weighted average with the help of an example. Yes. See what? How do you calculate a weighted average? So suppose you are given x values, let's say 10, 20, 30, 40, and 50. You are also given weight associated with each xi. For each value of x, the respective weights are also given. So let's say this has a weight of 0.2, this has a weight of 0.1, then this has a weight of, let's say, 0.5. All right. So these are their respective weights. Just a minute. Okay. So if given this distribution, these are nothing but weights. Okay. This is the actual x value. So in that case, how will you calculate the mean? See, the formula for mean was x bar is equal to summation x upon n, isn't it? But here, each value of x is not equally valuable. Okay, you cannot treat all the x values the same, and because of which uh, you will have to adjust these x values as per the weights given in the table. So how will you do it? Then the formula becomes summation w into x divided by summation w. Okay, summation w into x divided by summation w, or here yeah, summation w. So this will give you the weight. Just a minute, give me a minute. Weight. Yes, this must be the case. So let's find out weighted average ka formula. So divided by, just a minute. Are we given the formula for the weighted average? Let's touch module 3 part 4. It is a central tendency. See, this is for group data, which we will see later. There is weighted average. See, this is a formula. Weighted mean or weighted average. Summation W into X divided by summation W. Alright. So this is about it. See, so how will you solve for it? So we do the multiplication part first, and then we do summation. Summation we take at the end. So we will have to calculate one more column here, which will be W into X. So W into X will be 0.2 into 10. So this becomes 2. Then 20 into 0.1. This becomes how much? Again 2, no? Then 30 into 0.5. This becomes 15.
0.3. Then 50 into 0.3. This becomes. Is this correct? The multiplications? Just see if these calculations are correct. Okay. Okay. And summation of all the W's will give you the answer 1.4, isn't it? 1.4. 1.1, 1.2, 1.4. Correct. So the final answer will be summation W into X is 46 divided by summation W is 1.4. So what will be the final answer? X bar की value क्या आएगी? 46 upon 1.4. Hello, is there any noise? See, this is the value. This is the answer. 42.857. So we will take 86. 32.86. See, this is the answer, final answer. 32.86 because 46 upon 1.4 is 32857. So it was like that. So this is the final answer, weighted average. अगर अगर हमने सिंपल एवरेज किया होता, रेगुलर नॉर्मल अरिथमेटिक मीन किया होता, तो हम लोग क्या करते, इन सभी एक्स वैल्यूज को हम ऐड करते और उसको डिवाइड करते नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ. सो ऑल दीज वैल्यूज डिवाइडेड बाय 5, समेशन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज डिवाइडेड बाय 5, तो हमें आंसर मिलता 30. बट क्योंकि हमने वेटेड एवरेज लिया है, ये हर नंबर का इक्वल वेटेज नहीं है. और जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाले जो वैल्यूज है, 30 से लोअर वैल्यू जो वैल्यू है, उनका वेटेज कितना है? 0.2 एंड 0.1, मतलब 0.3 ही वेटेज है यहाँ पे दोनों का मिला के. ठीक है. वेरएज 30 से ऊपर वाली जो वैल्यूज है, 30 से ज्यादा वाली जो वैल्यूज है, उनका वेटेज कितना है? 0.6. 30 का खुद का अपना वेटेज भी कितना है? 0.5, isn't it? तो इसका मतलब मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी समवेयर हियर. Mean of the distribution will be somewhere here, not in the upper part, because मीन बेसिकली हमें क्या देता है? मिड पॉइंट देता है ना. तो मिड पॉइंट डेफिनेटली यहाँ पे नहीं रहेगा. अगर सपोज 1.4 वैल्यूज है या 14 वैल्यूज है, तो उसमें से फर्स्ट 3 वैल्यूज में तो मीन नहीं आने वाला है, इधर ही आने वाला है कहीं ना कहीं. मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नजदीक कहीं पे आ सकता है. इसलिए ये 32.86 है. मतलब ये वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका आंसर मतलब सही है क्या. एग्जैक्ट एक्यूरेसी नहीं बता रही है, बट एटलीस्ट ये बता रहा है कि इज इट लॉजिकली करेक्ट. द वैल्यू ऑफ 32.86 मीन, इज इट लॉजिकली करेक्ट और नो. ठीक है. तो अभी आप एक काम कर सकते हो. मैं यहाँ पे वेट्स यहाँ पे बदल देता हूँ एंड टेल मी व्हाट विल बी द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. सो लेट्स से इसका जो मीन, इसका जो वेटेज है, इसका वेटेज जो है ये 0.9 है. सो व्हाट डू यू थिंक इंट्यूटिवली, आपको क्या लगता है कहाँ पे मीन होना चाहिए? कौन से वैल्यू के नजदीक होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली? ओके, जस्ट मिनट, मैं पहले इसका स्नैपशॉट ले लेता हूँ. ओके, सो सपोज ये मैं अभी यहाँ पे वैल्यू बदल देता हूँ. सो व्हाट शुड बी द मीन नाउ? वेयर शुड मीन लाई? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, सो कहाँ पे रहेगा एग्जैक्टली? कौन से वैल्यू के नजदीक मीन आपको देखने को मिल सकता है? 40. 40 नो, 40 के यहाँ पे है, हो सकता है. बिकॉज देखो,
इसके ऊपर 40 के ऊपर वाले जो नंबर्स है इनका टोटल कितना है 5 + 1 6 + 2 7 isn't it? So 0.7 ये वाले ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे 0.3 है, तो समवेयर बिटवीन दीज टू वैल्यूज मे बी मोस्ट प्रोबेबली ये 40 के नजदीक रहेगा. I'm not saying it will be more than 40 or less than 40, but it will be close to 40. The closest point 40 होना चाहिए. तो let's find out कि what is the exact value. हमें again क्या करना पड़ेगा, x into w करना पड़ेगा. So 10 into ये second वाला example है. तो 10 into 0.2 is again 2, 2, 15. Then 0.9 into 4, 36. No, 36 correct. Then 0.3 into 5, so 15, no? 15. So इनका टोटल कितना आएगा, 30 + 36 is 66 + 4 मतलब 70, no? 70. So 70 divided by 1.4 कितना आएगा इसका आंसर. एक मिनट, 1.4 भी अभी चेंज हो चुका है. समेशन W's will be how much, 10 + 5 15 + 5 20 मतलब 2.0, राइट. 2.2 1 एंड ये रिमेनिंग जो 3 वैल्यूज है उनका भी आंसर 1 आ रहा है. सो 1 + 1 2, सो 70 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर देखो 35 है. मतलब नॉट एग्जैक्टली क्लोजेस्ट वैल्यू टू द 40. 30 और 40 के बीच में आ रहा है. सो हमारा मतलब एक तो है कि वो 30 नहीं था पहले, जो 30 वैल्यू आ रहा था वो नहीं रहेगा, उससे दूर रहेगा, और 40 के नजदीक वो हो सकता है. ऐसा हमारा एक एस्टिमेट था और जो कि सही है. ठीक है, ये समझ में आ गया वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट. ओके, अभी ये वेटेड एवरेज यूज कहाँ पे होता है. सपोज सपोज ये मार्क्स ही है आपके, ऑलराइट, ये मार्क्स है आपके, और ये अलग अलग टेस्ट के मार्क्स है. सपोज आपके सेमेस्टर में 5 टेस्ट होते हैं, एक सेमेस्टर में आपके 5 टेस्ट होते हैं सपोज. तो ये अलग अलग टेस्ट का स्कोर है आपका. तो लेकिन ये जो टेस्ट होते हैं वो इक्वल मार्क्स होते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि ये 50 मार्क्स का है, ये भी 50 मार्क्स का है. हर एक टेस्ट 50 मार्क्स. मतलब और देखो कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ आपके मतलब अभी आपको आपका जो स्कोर कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए आपको वेटेज तो सेम ही मिलता है वहां पे परसेंटेज टर्म्स वाइज. कम क्रेडिट्स ऑफर किए जा रहे हैं या कम उसको वेटेज असाइन किया जा रहा है वाइल कैलकुलेटिंग द परसेंटेजेस. तो उस वक्त आपको ये वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट काम काम आ सकता है. ठीक है, तो एज यू कैन सी ये वाला जो टेस्ट है वो दैट इज नॉट, इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बिकॉज उसका वेटेज कितना है, 20 मतलब कितना है, ये 2 है. 2 नंबर में से 0.2 मतलब 10% वेटेज ये फर्स्ट टेस्ट को दिया जा रहा है. 10%, उससे भी कम वेटेज सेकंड टेस्ट को दिया जा रहा है बिकॉज इनिशियल फ्यू टेस्ट मे नॉट बी सो इम्पोर्टेंट, बट सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो सेमेस्टर में वैसे आपके ये वेटेजेस बढ़ रहे हैं. ठीक है, और ये फाइनल टेस्ट एक नेम से लिया जा रहा है बिकॉज मेजर आपका जो इवेल्युएशन हो रहा है वो इस टेस्ट के बेसिस पे, मेजर जो वेटेज दिया जा रहा है वो इस टेस्ट के ऊपर दिया जा रहा है. मे बी ये जो है वो कुछ प्रोजेक्ट वगैरह रहेगा और इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 0.3 वेटेज दिया जा रहा है. तो मार्क्स अलग हो सकते हैं टेस्ट के रिलेटेड और इसीलिए ये वेटेजेस दिए जा रहे हैं. तो ये मार्क्स जो है यहाँ पे ये हमें अलग अलग तरह अलग अलग तरीके से ट्रीट करना है. इन मार्क्स को एक तरह ट्रीट नहीं करना है. अगर हमने सिंपल एवरेज लिया तो 30 आंसर मिलने वाले हैं, राइट. तो विच इज नॉट करेक्ट, बट अलग अलग वेटेज है. सेम वे ये एक्स वेरिएबल और क्या हो सकता है, रिटर्न्स हो सकते हैं. रिटर्न्स अर्न फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टमेंट्स. तो वन ऑफ द असेट इज गिविंग अस 10% रिटर्न्स, सेकंड असेट इज गिविंग अस 20% रिटर्न्स, 30%, 40, 50 एंड सो ऑन. सो ये परसेंटेज रिटर्न्स है. ऑलराइट, आई वांट टू नो व्हाट इज माय पोर्टफोलियो रिटर्न. मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो जो कि इन 5 असेट्स का बना के मतलब मिला के बन रहा है, तो उनसे मिलने वाला ओवरऑल रिटर्न कितना है वो मुझे देखना है. तो उस वक्त मैं क्या देख सकता हूँ, देखो आई हैव नॉट इन्वेस्टेड सेम मनी इन ऑल द असेट्स. तो ये पांचों असेट्स में मैंने इक्वल, ऐसा नहीं कि 20% इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पे किया है, 20% यहाँ पे, रिमेनिंग 20 यहाँ एंड सो ऑन. ऐसे हर एक असेट में मैंने इक्वली इन्वेस्टमेंट नहीं किया है. तो उस वक्त क्या कर सकते हैं हम लोग,
उनको अलग अलग वेट्स असाइन कर सकते हैं. तो लेट्स से हमने ये 2 रुपीज है, सपोज 2 रुपीज, फॉर सिंप्लिसिटी लेट अस से ये 2 रुपीज है. तो 2 रुपीज में से मैंने कितने पैसे अलग अलग असेट्स में इन्वेस्ट किए. तो मैंने मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट किया है ये फोर्थ असेट में किया है. कितना किया है? 90 पैसा. 2 रुपीज में से 90 पैसा, मतलब 45% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट इज गोइंग इन दिस पर्टिकुलर असेट, असेट 4. ठीक है. देन 0.5 मतलब 25% ऑफ द असेट, क्योंकि 2 में से 0.5 नो, तो 20% इन्वेस्टमेंट इज माई इन द थर्ड असेट एंड सो ऑन. सबसे लोएस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे? ये वाले असेट में है. तो इसलिए इसको हम कम वेट्स असाइन कर रहे हैं. मतलब ओनली कितना? only 5% of the investment is going here, 10% is going here, 15% is going in the fifth asset and so on. ऐसे सभी नंबर्स को मिलाओगे तो आपको ये मिलेगा. तो लेट मी राइट डाउन हियर. 15% इन्वेस्टमेंट इज हियर, 45%, फिर 25%, फिर 5% एंड लास्टली 10%. ठीक है. तो इन सभी को टोटल करो, कितना आएगा? 100% इन्वेस्टमेंट आएगा. 45 प्लस 15 60, 60 प्लस 25 इज 85, 90 एंड 10 100. तो ये 100% इन्वेस्टमेंट है. लेकिन सेम इन्वेस्टमेंट नहीं है ना. तो 45 यहाँ पे है, तो 45% यहाँ पे है. तो इससे मिलने वाले, ये वाले एसेट से मिलने वाले जो रिटर्न्स रहेंगे वो मेरे इन्वेस्टमेंट ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को मैक्सिमम अफेक्ट करेंगे. राइट, मैक्सिमम अफेक्ट करेंगे. एंड इट इज 40% रिटर्न्स आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. तो ऑब्वियसली मेरा जो ओवरऑल रिटर्न्स रहेंगे वो इट विल बी क्लोज टू दिस. सी, these things are dragging my overall profitability. ये जो रिटर्न्स मुझे मिल रहे हैं 10%, 20%, इवन 30% जो है वो मेरे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को ड्रैग कर रहे हैं, नीचे पुल कर, नीचे ये कर रहे, खींच रहे. व्हाई? बिकॉज दीज 3 assets आर नॉट गिविंग अस वेरी हाई रिटर्न्स. मतलब रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहा हूँ यहाँ पे. इन 5 असेट्स में से सबसे लो परफॉर्मिंग असेट्स कौन से है? ये 3 असेट्स. तो इसलिए ये, और उसमें ओवरऑल कितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ? 25 प्लस 5 30 प्लस 10 40%. मेरा 40% जो इन्वेस्टमेंट है वो इन 3 असेट्स में जा रहा है. तो दिस इज पुलिंग डाउन माय ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी. दिस इज पुलिंग अप माय प्रॉफिटेबिलिटी. ये जो है 50% के रिटर्न्स, बट यहाँ पे मैंने कितना इन्वेस्ट किया? ओनली 15%. राइट. सो इट विल बी क्लोज टू दीज नंबर्स, समवेयर हियर इट विल बी. राइट, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी. हमने इसका एक एग्जांपल भी एफई के लेक्चर में लिया था. मैंने 99% ऑफ द पैसा है, या ओके 99% ऑफ द मनी है, वो मैंने असेट ए में इन्वेस्ट किया. असेट ए में इन्वेस्ट किया और उससे मुझे कुछ रिटर्न्स मिल रहे हैं. तो उसके बाद बात करते हैं. और रिमेनिंग 1% जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने कहाँ पे किया है? असेट बी में किया है इन्वेस्ट. राइट. ये मेरा लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है. लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है. लेवल ऑफ 99% 1%. असेट बी जो है वो 100% से अप्रिशिएट हुआ, लेकिन असेट ए जो है वो सिर्फ 10% से अप्रिशिएट हो रहा है. मैंने सेम टू सेम एग्जांपल, थोड़ा सा माइनर चेंज हो सकता है, बट ऐसा ही एग्जांपल मैंने उस लेक्चर में लिया था आपको. तो यहाँ पे जब हम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है वो आइडेंटिफाई करना. राइट. तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो रिटर्न्स. पोर्टफोलियो रिटर्न्स. ठीक है. पोर्टफोलियो रिटर्न्स. पोर्टफोलियो रिटर्न्स क्या है ये मुझे फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे? देखो, मतलब यहाँ पे वेटेड एवरेज करना है हमें. तो वेटेड एवरेज क्या होगा? एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्टैंड्स फॉर दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, बट यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? रिटर्न्स देख रहे हैं ना. रिटर्न्स फ्रॉम असेट ए, रिटर्न्स फ्रॉम असेट बी इन परसेंटेज टर्म्स. तो मैं यहाँ पे एक्स बार की जगह पे आर बार लिख सकता हूँ. एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो से मिलने वाला रिटर्न्स कितना है वो देख रहा है. तो अगर मैंने नॉर्मल सिंपल एवरेज किया होता, देखो असेट ए से मुझे 10% मिल रहा है, असेट बी से 100% मिल रहा है, तो 10% प्लस 100% उसका सिंपल अरिथमेटिक मीन अगर करता मैं, तो समेशन आर डिवाइडेड बाय एन, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, सिंपल मीन करता तो मुझे आंसर मिलता 110/2, मतलब 55% के रिटर्न्स मुझे यहाँ पे मतलब मिलते. 55% के
55% ये मुझे आंसर मिलता, बट एक्चुअली एम आई गेटिंग 55%? ऑब्वियसली नॉट, इजंट इट? क्योंकि देखो हमने हमारा टोटल अमाउंट का 99% यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, विच मीन्स वी आर ओनली रिसीविंग 10% रिटर्न्स ऑन आवर 99% ऑफ द मनी, राइट? 100 रुपीज, सपोज मेरे पास 100 रुपीज थे, उसमें से 99 रुपीज मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किए, ऑब्वियसली मुझे मेजोरिटी ऑफ माई इन्वेस्टमेंट इज गिविंग मी ओनली 10% रिटर्न्स, ओनली 1% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट इज गिविंग मी 100% रिटर्न्स। तो ऑब्वियसली जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, इट विल बी क्लोज टू दिस नंबर, it will be close to this number, it won't be less than this, या एग्जैक्टली ये नहीं रहेगा, बट इससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, बिकॉज ये वाला जो नंबर है 100%, ये थोड़ा इसको ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा पुल करेगा, ऊपर ऊपर खींचेगा ये, राइट? ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो सिंपल एवरेज हम लोग यहाँ पे मेथड नहीं यूज कर सकते, वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं? वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या है? समेशन डब्ल्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। तो समेशन डब्ल्यू इंटू एक्स मतलब क्या? डब्ल्यू ए इंटू आर ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू आर बी। डब्ल्यू इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स के जगह पे हमने आर नोटेशन यूज किया है। सो वेट्स मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न्स, वेट्स मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न्स, और उन सबका टोटल करना है हमें। सो दैट विल गिव यू समेशन डब्ल्यू इंटू आर, राइट? एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यूज। सो डब्ल्यू कितना है? दो ही है, वेट्स एसोसिएट असाइन टू असेट ए एंड वेट्स असाइन टू असेट बी। ये नंबर्स क्या आएंगे, कोई मुझे बता सकता है? लुकिंग एट दिस एग्जांपल, कैन समबडी टेल मी व्हाट वैल्यू शुड आई सब्स्टिट्यूट हियर? What is WA? W, okay, RA is 0.1, 10, okay, so आप एक वैसे भी कर सकते हैं। देखो आपने जो बोला वो सही है, और 10% मतलब 10/100, 100% मतलब 100/100, 99% मतलब 99/100, 1% मतलब 1/100, बट ये ऐसा भी कर सकते हैं, एंड विच इज अप्रोप्रिएट, विच इज करेक्ट, इट्स देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बट क्योंकि सभी नंबर्स परसेंटेज में है, तो मैं डायरेक्टली इन नंबर्स को वैसे के वैसे ही ले सकता हूँ। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट। देखो कुछ नंबर्स परसेंटेज में है, कुछ एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड है, ऐसा अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहेगा, तो मुझे वो करना जरूरी है, 0.1 लेना जरूरी है। बट क्योंकि यहाँ पे सभी नंबर्स परसेंटेज में है, आई कैन सिंपली टेक दोज नंबर्स एज इट इज। सो डब्ल्यू ए कितना वेट असाइन किया है? ये वेट है, वेट एसोसिएटेड विद असेट ए, वेट एसोसिएटेड विद असेट बी। तो 99 into returns associated with asset A is 10. 99 into 10 plus 1 into 100. बराबर है ना? 99 into 10 weights into RA, WB into RB, right? 1 into 100. सही है ना ये? Is this correct? ओके, एंड देन लास्टली क्या है? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। कितना वेट असाइन किया है असेट ए को? 99, और असेट बी को 1%, इजंट इट? तो दोनों दोनों तरीके से चाहिए तो देखो करके, नो देयर वोंट बी एनी डिफिकल्टी हियर। आप 0.99 ले लो, या ऐसे ऐसे भी करके देख लोगे तो भी सेम ही आंसर आपको मिलने वाला है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 990 प्लस 100, 990, 99 इंटू 10, 990, 1 इंटू 100 इज 100। सो 990 प्लस 100, अभी स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर, बट ये आएगा 990 प्लस 100 विच विल बी 1090 डिवाइडेड बाय 99 प्लस 1, वो कितना आएगा? 100। तो 1090 डिवाइडेड बाय 100, ये करोगे तो आपको आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहेगी? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी 10.90%। क्योंकि ये सभी नंबर्स परसेंटेज में थे, तो आने वाला नंबर भी परसेंटेज ही रहेगा, राइट? 990, सॉरी, 10.90%। एज आई सेड, ये आपके जो पोर्टफोलियो रिटर्न्स रहेंगे वो इस नंबर के नजदीक रहेंगे, ना कि इस नंबर के। क्यों? क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द पैसा जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, राइट? तो दीज आर माय ओवरऑल रिटर्न्स, पोर्टफोलियो रिटर्न्स आर 10.90%। ये सबको समझ में आ गया वेटेड एवरेज कैसे काम कर रहा है? ओके, ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अभी वेटेड एवरेज हो गया, इसके रिलेटेड सम्स देख लो, आपके बुक में भी मिल जाएंगे, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करो, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंबाइंड मीन।
कंबाइंड मीन का भी टॉपिक्स आसान है, एक फॉर्मूला आपको एडिशनली लर्न करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो कंबाइंड मीन क्या है? देखो, कंबाइंड मीन में सपोज मल्टीपल ग्रुप्स हैं और उनके एसोसिएटेड आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिए और आपको ओवरऑल ये देखना है, ओवरऑल पैरामीटर्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो। अभी लेट मी राइट डाउन फर्स्ट कंबाइंड मीन। सो सपोज सिंपल सा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि आपके क्लास का TYBA क्लास में अगर हम स्टूडेंट्स को यू नो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली वे ऑफ grouping individuals into different classes on the basis of their gender। ओके, तो सपोज आपकी TYBA क्लास के मतलब परफॉर्मेंस को हम लोग ये कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं दो ग्रुप्स के। सपोज मेल फीमेल के परफॉर्मेंस को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो एग्जांपल क्या है कि सपोज दिस इज अ डेटा फॉर TYBA क्लास। यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, यहाँ पे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी है। तो क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पे? मेल, फीमेल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे हमारे क्लास में अभी ये रफ नंबर्स है, रफली 35 स्टूडेंट्स है। सपोज TYBA के इकोनॉमिक्स के क्लास में 35 स्टूडेंट्स है, उसमें से लेट्स से 15 स्टूडेंट्स आर मेल एंड 20 स्टूडेंट्स आर फीमेल। ठीक है, तो ये है। अभी आपका जो इंटरनल एग्जाम हुआ वो टेस्ट में उनका आपका परफॉर्मेंस क्या है? अगेन आई हैव नॉट चेक द रिजल्ट, आई एम जस्ट गिविंग यू रफ नंबर्स। सो परसेंटेज स्कोर्ड, परसेंटेज स्कोर्ड, परसेंटेज स्कोर्ड। तो कितना परसेंट है सर? सपोज इंटरनल एग्जाम में जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनका परसेंटेज स्कोर कितना है? तो लेट्स से उनका परसेंटेज स्कोर है 70%। ठीक है, और फीमेल स्टूडेंट्स का परसेंटेज स्कोर कितना है? लेट्स से 80%। ठीक है, ये एक रफ नंबर्स में ले रहा हूँ। और अभी हमें पूछा पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास। ये ग्रुप वाइज हमें पता चल गया कि 15 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 70% मार्क्स एंड 20 फीमेल्स हैव स्कोर्ड 80% मार्क्स। ठीक है, तो ओवरऑल मीन कितना होगा? या आपको पूछा है कि फाइंड द ओवरऑल, फाइंड द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास। अभी हमें पता है कि मीन, हम यहाँ पे बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है? ओवरऑल परफॉर्मेंस मतलब मीन यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो मीन के लिए हमें फॉर्मूला क्या है? मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन x अपॉन n, बराबर ना? तो परसेंटेज देखो, अभी परसेंटेज स्कोर निकालना है मतलब परसेंटेज स्कोर का एग्रीगेट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑल 35 स्टूडेंट्स का परसेंटेज स्कोर देखना पड़ेगा। तो कुछ स्टूडेंट्स को 40% मार्क्स मिले हैं, कुछ को 50% मिले हैं, कुछ को 80% मिले हैं, राइट? कुछ लोगों को तो 100% भी मिले होंगे, राइट? एंड सो ऑन, बिकॉज इंटरनल टेस्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम था तो ये पॉसिबल है, ये नंबर्स। ठीक है, तो सपोज ऐसे 35 नंबर्स हमें चाहिए और उन 35 नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ऑल 35 नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ विच इज 35, तो वी विल गेट द मीन। But do we have that much flexibility here? Do we have all the required information here? The answer is no. We don't have all the required हमें सभी 35 स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल स्कोर नहीं पता है। यहाँ पे हमें क्या बोला है कि इस ग्रुप का ये परफॉर्मेंस है, इस ग्रुप का ये परफॉर्मेंस है, दैट्स इट। हमें इतना ही पता है, हमें इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का स्कोर नहीं है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते, समेशन x अपॉन n, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, राइट? तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? देखो, हमें ग्रुप वाइज परफॉर्मेंस दिए, तो अगर हम लोग ने n इंटू लेट्स कॉल इट ये वाला जो नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हम लोग n बोल सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये वाला जो परसेंटेज स्कोर है उसको हम लोग x बार बोल सकते हैं, राइट? x बार। सो x बार i एंड n i, इसका मतलब क्या है?
number of students in respective groups. So N1 stands for number of males, N2 stands for number of females. Likewise, X bar 1 stands for percentage score of male students. X bar 2 stands for percentage score of by the female students. ठीक है, तो ऐसे इसको हम लोग, अगर मुझे इसको ठीक से लिखना है तो लेट वी कैन कॉल इट N1, इसको हम N2 बोल सकते हैं, इसको X1 बार बोल सकते हैं, इसको X2 बार बोल सकते हैं. ठीक है, इज दिस करेक्ट? मतलब ये समझ में आ गया सबको? देखो हमें चाहिए क्या यहाँ पे, न्यूमरेटर में समेशन x चाहिए, डिनोमिनेटर में n चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो डिनोमिनेटर में n हमें कब मिलेगा? when we add the two numbers. अगर मैंने फर्स्ट ग्रुप के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सेकंड ग्रुप के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे, बराबर ना? 15 + 20, N1 upon N2. ये बराबर है? ये समझ में आ गया आपको? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके, सो ये समझ में आ गया आपको व्हाई वी आर टेकिंग N1 + N2 इन द डिनोमिनेटर. ओके, अभी देखो, अभी मुझे ग्रुप वाइज, सपोज मुझे टोटल मार्क्स या टोटल परसेंटेज स्कोर्ड बाय मेल स्टूडेंट्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देखो ये क्या बता रहा है? 15 मेल स्टूडेंट्स का परसेंटेज स्कोर कितना है? 70%. इसका डज दिस मीन दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 70%? इसका ये मतलब है क्या कि हर एक मेल स्टूडेंट ने 70% स्कोर किया है, हर एक फीमेल स्टूडेंट ने 80% स्कोर किया है? डज दिस मीन दिस थिंग व्हेन वी आर लुकिंग एट दिस टेबल? ये ग्रुप का एवरेज है ना, मेल ग्रुप का एवरेज है, ये फीमेल ग्रुप का एवरेज है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि एवरीबडी इन द ग्रुप हैज स्कोर्ड दिस मार्क्स या एवरीबडी इन दिस ग्रुप हैज स्कोर्ड 80% मार्क्स. कुछ लोगों का यहाँ पे, कुछ लोगों का स्कोर 35% भी हो सकता है, कुछ लोगों का 100% भी हो सकता है. सेम वे इन लोगों का भी हो सकता है, राइट? दोनों ग्रुप में वेरिएशन हो सकते हैं, बट यहाँ पे ये जो नंबर्स है ये एवरेज परफॉर्मेंस बता रहे हैं, एवरेज परफॉर्मेंस, राइट? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मुझे समेशन करना है, मुझे हमें 35 स्टूडेंट्स के रिस्पेक्टिव परफॉर्मेंसेस पता नहीं है, लेकिन हम लोग अगर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल स्कोर ऑफ ऑल द मेल स्टूडेंट्स या टोटल परसेंटेजेस स्कोर्ड बाय ऑल द मेल स्टूडेंट्स. सो 15 × 70 करोगे तो क्या आंसर मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ मतलब टोटल परसेंटेज. देखो कैसे होगा ये. सपोज फर्स्ट मेल स्टूडेंट का स्कोर है 35%, सेकेंड का है 100%, थर्ड का है लेट्स से 45% एंड सो ऑन. ऐसे कुछ नंबर्स है, ऐसे 15 नंबर्स है, यहाँ पे 3 ही लिखे हैं, यहाँ पे 15 नंबर्स, मतलब इन टोटल 15 नंबर्स है. तो इन सब का टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इन सब का टोटल करोगे तो मिलेगा टोटल परसेंटेज स्कोर ऑफ ऑल द मेल स्टूडेंट्स, टोटल परसेंटेज, राइट? और वही हमें यहाँ पे चाहिए, समेशन x, इजंट इट? तो हम लोग क्या करेंगे? N1 × X1 बार, N1 × X1 बार प्लस, सिर्फ हमें ग्रुप वाइज परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, हमें ओवरऑल क्लास का परफॉर्मेंस चाहिए. तो सेम वे हम लोग क्या करेंगे? फीमेल स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस और नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स को ये करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस विल बिकम N2 × X2 बार. ठीक है, सो ये करोगे तो आपको कंबाइंड मीन मिल जाएगा, कंबाइंड मीन मिल जाएगा. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? लेट्स फाइंड आउट. ये अभी ये फॉर्मूला है, कंबाइंड मीन का ये फॉर्मूला है. सो क्या आएगा यहाँ पे आंसर? N1 इज 15, परसेंटेज स्कोर कितना है? 70%. तो अगेन अगर आप चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो, यहाँ पे 70% ऐसे ही रख सकते हो, या फिर 0.7 भी ले सकते हो. सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इफ वी टेक 0.7. सो 0.7 ले लेते. 70% मतलब 70/100 नो, तो 70/100 आएगा 0.7 प्लस N2 कितना है यहाँ पे? 20 इंटू कितना परसेंट है? 80%. 80 डिवाइडेड बाय 100, राइट? देन डिवाइडेड बाय N1 + N2 which is 15 + 20, राइट? 15 + 20. तो अभी इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 15 × 0.7 प्लस 20 ×
0.8 divided by 15 plus 20 will be 35. So इसका फाइनली आंसर क्या आएगा? 15 इंटू 0.7 का आंसर कितना आता है? 10.5. ओके. एंड 20 प्लस 0.8 का आंसर कितना आता है? 16. करेक्ट. सो 35. सो फाइनली क्या आएगा? 10.5 प्लस 16 मतलब 26.5 डिवाइडेड बाय 35. इसका आंसर कितना आएगा? 0. 26.5 डिवाइडेड बाय 35 क्या आएगा आंसर? 757. ओके, 757. तो ये देखो, ये आपका एक्स बार है, ये एक्स बार 0.757 है. अभी आप देखो कि परसेंटेज आपने नंबर्स कैसे लिए थे. परसेंटेज नंबर्स आपने ऐसे लिए थे, 0.7, 0.8 ऐसे लिए थे, रादर देन टेकिंग 70% एंड 80%. हमने डायरेक्टली उन नंबर्स को नहीं लिखा, उनको 100 से डिवाइड किया था, राइट. तो इसका मतलब है ये जो आंसर मिलेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द नंबर इन परसेंटेज टर्म्स. सो एक्स बार की वैल्यू आई 0.757, राइट. और उसको अगर परसेंटेज में लिखना है तो 0.757 इंटू 100 करना पड़ेगा. सो वो आएगा 75.7, 75.7%, राइट. 7%, राइट. 75.7%, राइट. तो मतलब ओवरऑल एज यू कैन सी, मेल स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस था 70%, फीमेल स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस था 80%. लेकिन ये जो नंबर है वो कौन से नंबर से क्लोजर है? दिस नंबर 75.7 इज क्लोजर टू दिस नंबर, रिलेटिवली स्पीकिंग. अगर आप इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस देखोगे, 75.7 माइनस 70 करोगे तो कितना आंसर मिलेगा? 5.7, राइट. 5.7. और 80 माइनस 75.7 करोगे तो कितना आंसर मिलेगा? 4.3, राइट. तो ये 4.3% दूर है इस नंबर से, इस नंबर से वो 5.7% दूर है, राइट. तो मतलब why that is the case? Because of the number of observations. See, there are more number of observations here, और इसी की वजह से जो आपको रिजल्टिंग आंसर मिलेगा that will be closer to this number than the difference between the two numbers. ये समझ में आ गया आपको? Is this clear? ठीक है. तो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन. और अगर आपने ये डायरेक्टली 70 नंबर भी लिया होता, तो 70 और 80 ऐसे नंबर लिया होता, तो इधर आंसर इंस्टेड ऑफ 0.757, यहाँ पे आंसर डायरेक्टली आपको 75.7 ही मिलता है. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ये ही आंसर डायरेक्टली मिलता है आपको 75.7%. ठीक है. सो रिमेंबर व्हाट यू आर डूइंग एंड अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट द वैल्यूज, इंटरप्रेट द आंसर्स. ठीक है. So this is about it. Now let me take one more example of combined mean and then this topic will be over. अभी यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे ये सब वैल्यूज दी थी और आपको कंबाइंड मीन फाइंड आउट करना था. बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको कंबाइंड मीन दिया है और आपको इसमें से एक, ये 4 नंबर में से कोई एक मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम. आपको ये दिया है, एक्स बार दिया है, आपको n1 दिया है, x1 बार दिया है, n2 भी दिया है, x2 बार नहीं दिया है आपको, तो वो फाइंड आउट करना है. तो ऐसा कुछ भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है. मे बी यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द mean of a respective group of individual group when the combined mean is given. ऐसा भी टाइप का एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं. गिव मी अ मिनट, जरा कर लेता हूँ. ओके. सो एक वैसे टाइप का एग्जांपल देख लेते हैं कंबाइंड मीन का. सो सपोज
mean of group A is 100. Mean of group B is 500. सपोज ये मीन सैलरी है, सपोज ये मीन सैलरी है, एवरेज सैलरी है सपोज। सपोज ये दो ग्रुप्स है, एज उनके एवरेज सैलरीज को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। देन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन group A is number of employees in group A is let's say there are 1000 employees in group A, and number of employees in group B is let's say 10. ठीक है, this is what is given. Okay, ये 500 नंबर नहीं लेता हूँ, is not given. This is not given. This we need to find out. And what is given? Combined mean salary of both the groups is combined mean salary of both the groups is 500 suppose. Okay, combined mean salary of 500 of both the groups is 500. Now what you are asked to find out this. You are asked to find out mean salary of group B. You are asked to find out this. So how will you solve for this? How will you solve for this? आपको ये combined mean का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ग्रुप्स कौन से हैं? यहाँ पे दो ग्रुप्स है, A और B ऐसा है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? combined mean x bar is equal to NA into x bar A plus NB into x bar B। ये सबस्क्रिप्ट में A और B जो है वो ग्रुप्स के रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को और मीन परफॉर्मेंस को बता रहे हैं। सेम वे डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लेते हैं? NA प्लस NB, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ग्रुप A प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ग्रुप B, मतलब टोटल ओवरऑल ये फर्म में कितने लोग काम कर रहे हैं वो NA प्लस NB को मिलाओगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मिलेंगे, राइट? तो इसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है उसको सब्स्टिट्यूट करो। ऐसा ही होता है कि all other information will be given, one of the term you will have to find out। तो combined mean यहाँ पे दिया है, x bar is given, कितना है x bar है 500, राइट? NA कितना है? number of employees in group A कितना है? number of employees in group A is 1000, तो ये 1000 है। XA bar कितना है? फर्स्ट ग्रुप का मीन सैलरी कितना है? लेट्स से 100 है, राइट? देन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ग्रुप बी, मे बी ये मैनेजरियल लेवल के एम्प्लॉइज है ग्रुप बी वाले, तो उसमें कितने एम्प्लॉइज है? 10 एम्प्लॉइज है। आर वी गिवन एक्स बी बार? नो, इट इज नॉट गिवन। मीन सैलरी ऑफ ग्रुप बी इज नॉट गिवन, सो उसको नहीं लिखा है तो उसको वैसे के वैसे ही लिखो, एक्स बार बी, राइट? व्हाट इज गिवन उसको लिखो। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ग्रुप ए एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ग्रुप बी, विच इज 1000 प्लस 100, राइट? 1000 प्लस 10, 1000 प्लस 10। तो इसका आंसर क्या आएगा फाइनली? 1010 इधर आएगा, ये 1010 डिनोमिनेटर में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये वाला जो नंबर्स है इनको ऐड करोगे तो 1010 आएगा, और वो उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में, अभी क्या करना है हमें? एक्स बार बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्स बार बी को एक साइड में रखना है, बाकी सभी टर्म्स को दूसरे साइड ले जाना है। तो क्या आएगा इसका आंसर? सी 500 मल्टीप्लाइड बाय 1010, 1010 मल्टीप्लाइड बाय 500, ठीक है? और यहाँ पे क्या आएगा? 1000 इंटू 100, इसका आंसर क्या आएगा? 10,000, 1 लाख, राइट? 1 लाख प्लस 10 इंटू एक्स बार बी, 10 इंटू एक्स बार बी, ये आंसर मिलेगा। इनका मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आएगा इसका आंसर? 500 इंटू 100 1010 इंटू 500,
इसका कितना आंसर आएगा? फाइव लैख फाइव. Is it? Yes, yes, yes. Just a minute. Will it be 5 lakh 5,000 or 50 lakh? Just 5 lakh 5,000, no? Okay. So ये आ गया और यहाँ पे आएगा वन वन 1 लाख, राइट? 1 लाख प्लस 10 इंटू एक्स बी. सो अभी 5 लाख यहाँ पे ये प्लस है, इसको ये साइड में ले आओगे तो माइनस हो जाएगा. सो 5 लाख माइनस 1,000. सो मैं इधर ही लिख लेता हूँ. 5 लाख माइनस 1 लाख. सो ये आएगा 4,05,000 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स बार बी, राइट? 10 इंटू एक्स बार बी. अभी एक्स बार बी हमें फाइंड आउट करना है, तो 10 को हम लोग क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा. इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो 4,05,000 डिवाइडेड बाय 10 विल बी इक्वल टू एक्स बार बी. तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा? एक्स बार बी इज इक्वल टू 4,05,000 था तो वो हो जाएगा 40,500. This is the average salary of employees in the second group B. Okay, so look at the disparity. See here, group A के जो लोग हैं वो कितने लोग हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1,000 है. 1,000 इंडिविजुअल्स आर अर्निंग ओनली 100 रुपीज. मे बी ये डेली वेज हो सकता है उनका. 1,000 लोगों का डेली सैलरी है 100 रुपीज. वेरएज ये जो 10 एम्प्लॉइज है उनका डेली सैलरी कितना है? एज यू कैन सी 40,500. डेली हो सकता है, मंथली हो सकता है, वट एवर इट मे बी, बट 40,500. लुक एट द डिस्पैरिटी. यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 40,500 है. और इसी के वजह से ये जो कंबाइंड मीन हमें मिला है वो 500 मिला है, विच इज मच डिफरेंट देन द मीन सैलरी ऑफ ग्रुप ए. मीन सैलरी ऑफ ग्रुप ए क्या है? 100. वेरएज कंबाइंड मीन कितना है? 500. जबकि मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, ऑलमोस्ट 99% ऑफ द एम्प्लॉइज जो है वो इस ग्रुप में आते हैं, ग्रुप ए में आते हैं. देखो 1,000 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं? 1,010. उसमें से मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल द इंडिविजुअल्स आर इन ग्रुप ए. डिस्पाइट हैविंग मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स इन दिस ग्रुप, जो कंबाइंड मीन आ रहा है वो इसके बिल्कुल भी नजदीक नहीं है. 100 के बिल्कुल भी नजदीक नहीं है. इट इज वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम 100. और इसका रीजन क्या है? ये जो 10 इंडिविजुअल्स है उनका सैलरी इज वेरी हाई, which is it is like an outlier. It is these 10 individuals are earning very high incomes, और इसी की वजह से combined group mean जो हमें मिला है 500, which is that is much distinct, much different from the first group का mean. ठीक है? I hope this combined mean का. ठीक है. सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट. अभी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाला हूँ. तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट्स है, मीन मीडियन मोड, इसके रिलेटेड कोई डाउट्स है तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछो. चलो देन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय. थैंक यू. बाय.